Why does the color of copper sulfate solution changes when iron nail is dipped in it? Write corresponding chemical equation. So CuSO4 plus iron nail, there is a displacement reaction taking place, FeSO4 aqueous. This is aqueous, this is solid, and Cu in solid form is displayed. This is light green and this is blue solution. So आयरन कॉपर सल्फेट में अगर आयरन डाला जाता है तो आयरन एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है. सो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन copper, so it displaces copper from its salt solution and color of solution changes from blue to light green. Now, when a compound X is mixed with water, it liberates large amount of heat and form white colored solution used for whitewashing. When white solution is whitewashed, it forms a new compound after 2-3 days. Whose color is marble like. Name X, Y, Z and write chemical equations. X, Y, Z के नैतिक नाम बताओ. सर एक्स है कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन और वाई है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जेड है कैल्शियम कार्बोनेट. CaCO3. Related equations बताइए दिव्या. Sir, CaO plus H2 gives CaOH whole twice. CaOH whole twice plus CO2. CaOH whole twice plus CO2. CaCO3. CaCO3. Now,
एल्यूमिनियम vessel is used to store ferrous sulfate solution. Solution oozes out after some times. Oozes out का क्या मतलब है? Leaks out. और leaks out that means why? Write related chemical equation. Trishu. सुजैन आया हुआ क्वेश्चन है, बोलो शुक्रिया. एल्यूमिनियम प्लस FeSO4 अच्छा बता रही है, और प्लस Fe. So यहाँ पर 3Fe है तो 3 है, 2 है तो 2. So aluminium forms water soluble salts, so there appears hole in the vessel and it leaks out. बात समझ में आ गई? उस बर्तन में क्या हुआ, जब सोल्यूशन आपने डाला तो उसमें छोटे छोटे होल हो गए. क्यों हो गए? क्योंकि वो कोरोडेड हो गया, या उसमें उसने कंपाउंड बना लिया और उसी में से सोल्यूशन रह गया. ना when a white colored compound is heated, then it forms brown colored pungent smelling acidic gas and self turns in light yellow color. What kind of reaction it is? Also write reaction. Mayank. है नहीं, आप बोलो नैतिक. सर लेड नाइट्रेट हाँ. हीट करेंगे. PbO लेड नाइट्रेट को हीट कर दिया. PbO प्लस NO2 प्लस O2 प्लस O2 बैलेंस करो. उत्कर्ष करो. सर वहाँ पे N पे 2 लगा देंगे. 2 लगा दिया. O काउंट करो. O इधर कितने हैं? 6 है. इधर कितने हैं? 6 से काउंट करो. नहीं 5 नहीं सर 7. इसको 5 कर दो, 6 कर दो. ये भी 6 हो गए. अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया? 2 PbO प्लस 4 NO2 प्लस O2. Now अब देखिए,
silver metal is purified from silver nitrate solution, it is expected using copper metal during refining of silver. Write chemical equation for it. Chandrasekhar. नमन बुक का ही क्वेश्चन है। हाँ बोलो। कोई बात नहीं रिया बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन। सर AgNO3 plus Cu हाँ plus Cu NO3 plus Ag. तुमको कॉमन मिस्टेक कर रहे हो। हाँ बोलो। Cu तो बाईवैलेंट है ना प्लस Ag, तो ये CuNO3 तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया। इस तरीके से सिल्वर मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम सल्फेट solution is mixed with barium chloride solution. Sodium is put in cold water. Copper metal vessel is heated on flame. Now, nitrogen and hydrogen gas is heated at 673 Kelvin at high pressure. CO2 gas is passed in lime water solution. Ferrous sulfate solution is heated. Silver chloride powder is kept in sun. Electricity is passed through water, that is mineral water. Common salt is added to sulfuric acid. Manganese dioxide in manganese dioxide HCl gas is passed. ये फर्स्ट चैप्टर के इक्वेशंस हैं, कुछ इनके बारे में आपको बताना है। सोडियम सल्फेट
सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद बेरियम। दिशिता पहले का बताओ। Na2SO4 plus BaCl plus Br. आप बोलो ताशी। Sir, Na2SO4 plus BaCl2. हाँ, Na2SO4 प्लस BaCl2 ये अभी एक्वियस है और ये भी एक्वियस है। आगे बोलो। Sir, gives NaCl plus NaCl प्लस TaSO4. TaSO4, ठीक है। नेक्स्ट इज, और ये चीज प्रेसिपिटेट हो जाएगा, इसमें सॉलिड लिखना पड़ेगा। ये कैसा प्रेसिपिटेट हो जाएगा? वाइट प्रेसिपिटेट, और ये अभी भी एक्वियस रहेगा। दिव्या डी। Sir, Na plus H2, NaOH plus H2. NaOH प्लस H2 बैलेंस करो। H बैलेंस है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 2Na प्लस 2H2O gives 2NaOH प्लस H2। अर्चिता। Sir, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, कॉपर 2 ऑक्साइड ब्लैक। सही है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। CuO, इसको लिखो ब्लैक कलर। कॉपर का बर्तन फ्लेम पे रखने पे नीचे से काला क्यों जाता है? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ओके, उत्कर्ष। इन कैटालिस्ट Fe आयरन की प्रेजेंस में सर वो आयंस में सर अमोनिया बन बुक का ही क्वेश्चन। N2 plus H2 gives NH3, तो यहाँ 3 कर दो, यहाँ 2 कर दो। अमोनिया इज फॉर्म, दैट इज 673 केल्विन, और Fe और मॉलिब्डेनम उसका प्रमोटर है, मॉलिब्डेनम भी होगा। अच्छा, CO2 गैस इज पास्ड इन लाइम वाटर सॉल्यूशन। CaO plus CO2 gives गर्भ CaOH plus मृत्युंजय। CaOH2 plus CO2. CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 बताइए। CaCO3 plus H2O. CaCO3 plus H2O, दिस इज कलरलेस। और जब ये कैसा हो जाएगा? मिल्की। इफ एक्सेस CO2 is passed, so CaCO3 plus H2O, ये पूरा सोल्यूशन ले लो। H2O भी बन गया, उसी में ही तो पास करोगे, और साथ में CO2 और पास कर दिया। आगे बोलो मृत्युंजय। उत्कर्ष। और CO2 डाल दे, डालते ही जा। चंद्रशेखर। कैल्शियम बाइगास हाँ बोलो। CaCO3 हाँ, नहीं बता दो। रिया। Sir, CaCO3. अर्चिता। बाइकार्बोनेट तुमको पता नहीं है, मोनोवैलेंट है, और कैल्शियम है बाईवैलेंट, तो कैसे फार्मूला बना रहे हो? ये चीज यहाँ लगाओ, ये चीज यहाँ लगाओ, तो क्या होगा? CaHCO3 का होल ट्वाइस, और ये फिर से कलरलेस हो जाएगा। पहले मिल्की होगा, ज्यादा पास कर दिया तो क्या हो जाएगा? कलरलेस। ठीक है, अगला देखिए। फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इज हीटेड। अंशुप्रिया। FeSO4 gives Fe2O3 plus SO2 plus SO3. SO2 प्लस, इसका कलर बताओ, इसका कलर बताओ। ये रेस्ट है,
रेड ब्राउन ना, तो इस तरीके से ये लाइट ग्रीन और ये रेड ब्राउन, ये पंजेंट स्मेलिंग गैसेज हैं। अगर वो पूछा जाएगा पंजेंट स्मेलिंग गैसेज निकलती हैं। जी नाउ सिल्वर क्लोराइड पाउडर इज केप्ट इन some tissue. AgCl2 हाँ, plus AgCl. कुमकुम AgCl2 plus हाँ, सोनाक्षी Ag plus CO. सुजैन AgCl. AgCl kept in sunlight, Ag plus Cl2, ये कलर इसका व्हाइट से ब्लैक हो जाएगा। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। अगला देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू मिनरल वाटर, ताशी Sir, H2O इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो H2+O2. H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस, H2 प्लस O2 कहाँ कहाँ पर? Sir, ये कैथोड पे. एट एनोड, तो ये डबल मिलेगा और ये 4 लिख दो, यहाँ 2 लिख दीजिए, 4 है तो 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 4H2। ठीक है, ये 2 लिखने से हो रहा है क्या? 2 लिखने से 2 कर दो। चलो, कॉमन सॉल्ट इज एडेड टू सल्फ्यूरिक एसिड, नैतिक SO4 MgH, बोलो SO4 क्यों सल्फ्यूरिक एसिड बोलो ना। H2SO4 हाँ, H2SO4 plus NaCl NaSO4 Na2SO4 Na2SO4 plus Hc प्लस HCl। तो ये लिटमस पेपर जब ले जाएंगे इस HCl गैस पर, ये गैस निकलेगी। तो और जबकि ये सोल्यूशन था, ये भी सोल्यूशन था, ये भी सोल्यूशन है, लेकिन ये गैस। चलिए, दिव्या, मैग्नीज डाइऑक्साइड में HCl गैस पास की जाती Sir, MgO. है। Mg कैसे? मैग्नीशियम थोड़े ना, मैग्नीज है। This MnO2 हाँ, पाइरोल्यूसाइड plus HCl. MnCl2 plus H2. बुक की इक्वेशन है, तो ये कितना लिखा जाएगा? दैट इज 4HCl, तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो गए, Cl2 सही है। इस ये क्वेश्चन ऑक्सीडेशन रिडक्शन की है, तो इसमें ये बताइए Mn का क्या हो रहा है और इधर Cl का क्या हो रहा है? दो चीज पूछी गई, बोलो बोलो। Mn यहाँ क्या है? 2 ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो ये 4 प्लस में है, और ये 2 Cl से रिएक्ट कर रहा है तो 2 प्लस में है। वैसे भी तुम इसी से देख ले हो कि हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो उससे क्या होता है, बोलो। हाइड्रोजन का रिमूवल ही रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का रिमूवल या ऑक्सीजन का एडिशन, ये तो ऑक्सीडेशन है ना। तो ये अगर हो गया ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हो गया बताइए? रिडक्शन, कि भाई ऑक्सीजन हट रहा है तो रिडक्शन हुआ, या हाइड्रोजन हट रहा है तो ऑक्सीडेशन। सही। Now, question number 7. What happens when gypsum is heated at 373 Kelvin?
hydrated copper sulfate solution is heated. Baking soda is heated. Washing soda is heated. Limestone is heated. That is gypsum is heated above 373 Kelvin. Now, पहले का आंसर दोनों है CaSO4.2H2O. Heat CaSO4 .2H2O. dot 2H2O. That is bihydrated. 273, 373 Kelvin. CaSO4 dot half H2. Plus 1/2. That is POP is formed Trishur. उत्कर्ष हाँ उत्कर्ष CuSO4 dot 2H2O. रिया Sir, CuSO4 dot 2H2O gives us अर्चिता CuSO4 dot 5H2O. CuSO4 plus 5H. सही है CuSO4 dot 5H2O CuSO4 plus 5H2O its blue color is disappears and it becomes powdery. ये क्रिस्टल है और ये क्या बन जाएगा it loses its water of crystallization और ये कैसा हो जाएगा white colored. It loses its water of crystallization. दिव्या सी बताओ Sir, NaHCO3 फिर उसको heat करेंगे. अर्चिता Na2CO3 plus H2O plus CO2. Na2CO3 plus H2O plus CO2 that is यहाँ 2 लग जाएगा इससे. हाँ 2 लगा दो तो इससे पता चलता है कि क्या फॉर्म होता है that is सोडा ऐश वॉशिंग सोडा नहीं है जब 10 के साथ होगा तब वॉशिंग सोडा कहा जाएगा अब इसे क्या कहा जाएगा सोडा ऐश ओके नाउ नैतिक वॉशिंग सोडा इज हीटेड Na2CO3 dot 10H2O. हाँ Heat Na2CO3 dot 10H2O Na2CO3 Na2CO3 plus 10H2O. plus 10H2O that is इसको कहेंगे सोडा ऐश और ये है वॉशिंग सोडा नेक्स्ट लाइमस्टोन तनिष लाइमस्टोन इज रिटन अंशुप्रिया CaCO3 को 2000 केल्विन पर हीट किया CO प्लस CO2 H2O तो है ही नहीं now gypsum is heated Suzanne CaSO4 dot 2H2O. CaSO4 dot 2H2O CaSO4 plus 2H2O.
CaSO4 प्लस 2H2O, नाम बताओ काशी, आप बताओ। डेड बॉन्ड प्लस ये ऐसा प्लास्टर बन जाएगा फिर पीओपी बन ही नहीं पाएगा, किसी ने टेम्परेचर बढ़ा दिया बेकार है। चलो ना a knife is used to cut fruits is immediately dropped, dipped in blue litmus solution. तो उसका कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस टू रेड, वाइट, इट्स कलर चेंजेस रेड। उत्कर्ष बोलिए। एसिडिक बोले सर जो एलिमेंट काटा होगा fruits that which is cut may be acidic, that is citrus, ठीक है। so जो fruits हैं are oftenly containing organic acids, उसमें अलग अलग एस्कॉर्बिक एसिड है, तो किसी में क्या है, that is citric acid, ऐसे अलग अलग एसिड्स हैं। that's why so acid changes and contains H plus ions, which is responsible for changing, that is blue litmus to red. Now a metal M forms oxide of formula M2O3. It dissolves both in dilute sulfuric acid and dilute NaOH. Find the metal and write related equation. 2015 में आया है. So write related equations and find metal. दिव्या. metal aluminium हाँ. So metal M is aluminium. Al2O3 plus H2SO4 gives वो कह रहा है कि it dissolves. Al2O3 नहीं पूछ रहा है कि Al2O3 की सोल्यूशन, वो तो तुम बता रही हो कि वो उसके ऑक्साइड एम्फोटेरिक हैं, और वो भी एक इक्वेशन है कि Al2O3 से कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन यहाँ कह रहा है मेटल को ही डाल दिया, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया और चाहे NaOH में, तो वो
उसमें डिजॉल्व हो जाता है। डिजॉल्व, अब वैसे तो हम लोगों ने कई जगह पढ़ा है Al2O3 एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, थोड़े बहुत एसिड होगा, माइल्ड एसिड तो काम नहीं करती, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड में डाला है तो डिजॉल्व हो गया बोल रहा है। तो अब बताइए कि क्या क्या रिएक्शन हुई होगी। Al plus H2SO4. हाँ ऐसे ही बताना होगा। एंड इट्स ऑक्साइड क्या है, इसका ऑक्साइड भी बता दो, इज Al2O3, ठीक है। चलो Al plus H2SO4, एक तो ये रिएक्शन बताओ, और एक Al की NaOH के साथ भी रिएक्शन बताओ। Al2SO4 whole price plus H2. Al2SO4 होल प्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और बताइए, तो बैलेंस हम कर लेंगे, आगे बोलिए आप। अर्शिता AlOH whole thrice plus बोलो बोलो। NaAlO2 plus H2. NaAlO2, ठीक है, प्लस H2। तो अब यहाँ से देख लो, NaAl ये मोनोवैलेंट है, ये ट्राईवैलेंट है, और ये मिलके 4, और ये भी तो 4 ही हो गया, तो हो ही जाएगा, हो जाएंगे कि नहीं। तो इस तरीके से सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसका नाम क्या है, सोडियम मेटा। वैसे तो Al2O3 की भी इससे रिएक्शन होती है, यही देता है, इसमें भी यही देगा। अभी हम बैलेंस कर देते हैं, तो जरा देखिए, तो इसमें क्या होगा, H2, तो ये 2 है तो यहाँ 2 कर दो, तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। फिर और भी चीजें चाहिए होंगी, इसमें वाटर भी चाहिए, प्लस वाटर, ठीक है, वाटर भी ये इससे रिएक्ट करेगा। अब इसको बैलेंस करें, तो देखो अब क्या सभी चीजें बैलेंस हैं, चेक करो। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, सिर्फ हाइड्रोजन ही नहीं बैलेंस है, तो इससे क्या कर दो, 3/2, तो हो गया ना, 3 हो गया, इधर भी 3 हो गया, मल्टीप्लाई किससे करो, 3, so that is 2 से मल्टीप्लाई कर दो, so this gives us 2Al plus 2NaOH plus 2H2O is 2NaAlO2 plus 3H2. now हाँ Question number 23. तब तक एक क्वेश्चन आप लोग करिए, इनका हम क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन है, अ कन्वर्जिंग लेंस forms a real and inverted image of an object at a distance 100 centimeter. 100 centimeter from it. What should be, where should the object be placed? In front of lens, so that the size of image is twice the size of object. Also calculate, also find power of lens. जैसे ही पता चलता है, इसका आंसर मुझे बता दें। अपना अपना करो शिव शर्मा। चलो कौन सा benefits of
इसी का बात ऑक्सीजन को होते तो किया बेनिफिट टू बायोटिक कंपोनेंट इट इज यूज्ड बायोटिक कंपोनेंट का क्या मतलब है इट इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज वो जो इट स्क्रीन्स जो हम लोग बायोटिक कंपोनेंट का फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ये हमको किससे स्क्रीन करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रेजेंट एंड इज प्रेजेंट एट फिल्टर करती है इट फिल्टर्स अल्ट्रावायलेट रेज एंड सेव्स अस फ्रॉम इट्स हार्म ये तो पता है और ऑक्सीजन क्या काम में आ रही है ठीक है हाँ बताओ बिटवीन से नहीं है सब कुछ दे रहा है डेटा सर U is equals to minus हाँ U is equals to minus 50 सेंटीमीटर और वो पावर के साथ बताओ ना और 10/30 10/30 पावर तो सही नहीं बता रहे हो और लोगों का भी आंसर आए अच्छा माइनस Sir, 3/100. पावर नहीं, एक सेकंड. और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए दोनों चीज बताओ कुछ आया पावर 100/3330 तुम तो बहुत कठिन बता रहे नहीं, 100%. चलो और कोई दिव्या तुम्हारा भी कुछ आया डेटा बताएं चलो चलिए तो इसमें ये बताया गया है इनामी क्वेश्चन था नहीं है हाँ 0.03 और यू गलत ये देखो कि दिस इज 2f1 दिस इज f1 दिस इज f2 दिस इज 2f2 तो हमको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिल रही है एट ए डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर हमको पता नहीं लेकिन कहीं ये मिल रही है तो और हमें डबल साइज में मिल रही है हम जानते हैं कि यहाँ से आती है तो सेम साइज होती है जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो साइज बढ़ने लगता है इसके आगे जाओगे तब तो फिर वर्चुअल मिल जाएगी तो कहीं यहाँ रखा है लेकिन मुझे मालूम नहीं कहाँ रखा है एंड द इमेज इज फॉर्म्ड इसकी इमेज कहाँ मिलेगी तुमको एक तो ये है जो F से जाएगा और दूसरा यहाँ कहीं मिलेगी तो ऐसे में इससे डबल साइज मिलेगी चलो अब आप ये देखिए दो फार्मूले होते हैं एक होता है कि V/U इट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन
एक तो ये भी फार्मूला है। अब मैग्निफिकेशन की क्या वैल्यू आ रही है बताओ? मैग्निफिकेशन कितना है? -2। v कितना है? +100। और u उधर ले जाओ तो 100 इज इक्वल टू -2u। तो u कितना हो गया? 100 अपॉन -2 तो -50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर। इट इज u। तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट लेफ्ट साइड ऑफ लेंस। ऑब्जेक्ट should be placed at left side of lens at 50 सेंटीमीटर। और 1/f क्या होता है? 1/b minus 1/u। तो इसमें वैल्यू प्लेस करो दिशु। 1/f equal to 1/100 minus 1/x minus 1 minus 50. सही है, ये चीज है। माइनस माइनस खत्म करो, एक साथ ले आओ। तो 1/100 और प्लस 1/50। 100 यहाँ ले लीजिए तो ये 1 + 2। तो 1/f कितना हो गया? 3/100। तो बोलो f कितना हो गया? 100/3 सेंटीमीटर। लेकिन हमको तो मीटर में चाहिए क्योंकि पावर तो मीटर में निकलती है। तो इसलिए 100/3 सेंटीमीटर इंटू 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर। यूनिट फैक्टर मेथड लगा दो तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया और जो चीज है वो किसमें आ गई? तो f की वैल्यू कितनी हो गई? 1/3 मीटर। ये तो हो गई। आल्सो पावर क्या होता है? 1/f इन मीटर। तो इट इज इक्वल टू 1/1/3। तो यहाँ प्लस में लिख दो, ये प्लस में आई है, यहाँ साइन लगाना जरूरी है। तो दैट इज इक्वल टू +3 डायोप्टर। सही है। अब आगे देखो, एक और इनामी क्वेश्चन। दैट इज a divergent lens has a focal length of 20 centimeter. ये वो क्वेश्चन है। At what distance should an object of height 4 centimeter? What distance should object of height 4 centimeter from optical center of lens should be placed? Placed so that image is formed. 10 centimeter away from lens. Also find size of image. दोनों आंसर एक साथ बनाना, एक एक करके नहीं। होगा तो ऐसे स्टेटमेंट पे नहीं लिखा जाता माइनस में। डाइवर्जेंट लेंस तो दिया है ना।
सर U है -20 और H 8. अब बस दूसरी बात नहीं करता। एरो लगेगा। So U equal to -20 और HI equal to 2. Now, ये देखो, इन्होंने कहा कि 20 सेंटीमीटर डाइवर्जेंट लेंस और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। व्हाट डिस्टेंस? 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा, तो 4 सेंटीमीटर का रखा होगा तो कहीं ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा और एक रे तो ऐसे ही गुजर जाएगी ऑप्टिक सेंटर से। तो अब देखिए, ये दिस इज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों को पीछे मिलाया तो यहाँ इसकी डॉटेड में बनेगी इमेज। अब देखिए, दिस इज डाइवर्जेंट लेंस है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ हमें दी है और क्या दिया है? हाइट 4 सेंटीमीटर है और इमेज इज फॉर्म्ड 10 सेंटीमीटर। सारे डिटेल यहाँ लिख लो। तो v कितना है? v बताओ तिशु। 10 सेंटीमीटर। ठीक ठीक बताओ। अब पेन भी ले लियो, बता नहीं दे। अंशुप्रिया, v कितना है? अर्चिता, हाँ -10 बोलो। -10 सेंटीमीटर। f कितना है? 20 सेंटीमीटर। तुम बताती ही नहीं चीजें, फिर सब आंसर कैसे निकाल लेती हो? सही है, दोनों चीज तो इसकी इधर ही पड़ती हैं। तो 1/-20 इट इज v कितना है? -10 और -1/u। आपको चाहिए कि कहाँ रखना है, तो 1/u वहां ले लो और -1/10 लिख लो। ये सब ऊपर साइन ले लो और ये इधर आएगा तो क्या प्लस में 1/20 आ जाएगा। नाउ इट इज 20, इट इज -2 + 1, तो 1/u की क्या वैल्यू हो गई? -1/20। तो u कितना हो गया? -20 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन क्या होता है? HI/HO HI, और एक ये भी होता है V/U भी होता है, और HI/HO, तो हम इसी को यूज कर लें, हमको छोड़ दें। V कितना है? -10 सेंटीमीटर। और U सर -20 सेंटीमीटर। -20। HI और HO? सर HI हमें दिया नहीं है, HO 4 सेंटीमीटर। HI और ये +4, तो इससे HI निकल जाएगा। ये माइनस से माइनस कटा, 0 से 0 कटा, माइनस तो अपने आप कट जाएगा, काटने की जरूरत नहीं है। 1/2 आया, तो 1/2 इट इज इक्वल्स टू HI/4। तो इससे HI कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। दिस इज प्लस का आ गया कि नहीं? अच्छा बता दिया आपने। नाउ एक क्वेश्चन और। नाउ an object of 4 centimeter high
is placed at a distance 6 centimeter in front of a concave mirror. At a distance 6 centimeter in front of concave mirror of focal length 12 centimeter. Find position of image formed. Find only position पता करना है. चलो उसको देखें. Object of 4 centimeter height is placed in front of concave mirror. concave mirror के सामने हमने रखा तो 4 सेंटीमीटर हाई है, फोकल लेंथ 12 है, F से भी पहले रख दिया यहाँ पर, तो 4 सेंटीमीटर का ये है, रखा गया है 6 सेंटीमीटर में, जबकि इसकी फोकल लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर. तो गरिमा सिर्फ फार्मूला बता दो, मिरर फार्मूला. सही. 1/v plus 1/u is 1/f. तो यहाँ पर दिया गया है u is -6 सेंटीमीटर, f is -12 सेंटीमीटर. 1/v plus 1/-6 is equal to 1/-12. तो 1/v is -1/12. माइनस ऊपर ले लिया और ये उधर ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 1 plus -1 plus 2. तो 1/v कितना आ गया, कहीं गड़बड़ी हुई है, ये चीज माइनस में थी तो उधर प्लस में आ गई. ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, जब इसमें कॉन्केव में इधर रखा जाता है तो इमेज यहाँ बनेगी, इधर तो बनेगी. कैसे बनेगी, क्योंकि ये ऐसे आएगा तो ये F से निकल जाएगा, और जो ऐसी रे वो ये तो कहाँ पे बनेगी बताओ, ये बन जाएगी. ओके, तो इट इज 1/12. तो v कितना हो गया +12 सेंटीमीटर. Now an object 5 centimeter in length is held 25 centimeter away. Is held 25 centimeter away from a converging lens of focal length 10 centimeter. Find position, size and nature of image. तीनों चीज बताइए.
कल मॉर्निंग में एक क्लास रख ली जाए, हाँ सर। हाँ रख लें, इलेक्ट्रिसिटी ये सब क्वेश्चन करा देंगे जो भी होंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल सब करा देंगे, जो न्यूमेरिकल से सब तो प्रैक्टिस हो जाएगी। बोलो अंशुप्रिया, करो। सर पोजीशन ऑफ इमेज 50/3 सेंटीमीटर हाँ और उसकी हाइट है -10/3 नहीं +10/3 सेंटीमीटर। और नहीं एक चीज बोलो। -10 हाँ। और नेचर है रियल इन्वर्टेड। तीन चीजें उन्होंने बताई है। एक तो पोजीशन बता दी, दैट इज इक्वल्स टू कितनी बताई, प्लस बताई ना, हाँ 50/3। प्लस 50/3 सेंटीमीटर, और एच आई बताया है +10/3 कि माइनस बताया, और रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसे हम लोग सॉल्व करें। कन्वर्जिंग लेंस है, ये कन्वर्जिंग लेंस है, और इसी में हमने 5 सेंटीमीटर लिया है, तो बताइए HO कितना है, +5 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पर इसे रखा हुआ है, -25 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ कितनी है, और इसकी फोकल लेंथ उत्कर्ष होती क्या है, तो F is equals to +10 सेंटीमीटर, 1/F is equals to 1/V minus 1/U. So 1/+10, it is equals to 1/V, or 1/-25. 1/10 is 1/V plus 1/25. V चाहिए आपको तो ये इधर ले आओ, तो 1/10 minus 1/25, it is 1/V. So this is 50. 5 minus 2, it is 1/V. So 3/50, it is 1/V. तो V is equals to +50/3, प्लस जरूर लिख दें इतना, फिर यूनिट भी लिख दें ना। अब हमको चाहिए HI, तो M क्या होता है, V/U भी होता है, VU की भी तो जरूरत पड़ेगी, और HI/HO, तो अब इसी को यूज कर लो। V कितना है, +50/3, U कितना है, -25, HI नहीं पता, HO +5। तो अब देखो 50 ऊपर रहा, 3 नीचे चला गया 25 के साथ, और निगेटिव भी साइन है, ये 2 आ गया, और 5 भी इधर आ गया। So this is HI, so it is 10/3, वो भी निगेटिव का, so it is -3.33 या 3 बार सेंटीमीटर HI। अगर आपको इमेज चाहिए तो सबसे अच्छा M निकाल दो, तो आपका ये अपीलिंग आंसर हो जाएगा। M क्या है, V/U, या कुछ भी लिखकर निकाल दें, V/U, इट इज +50/3 अपॉन -25, तो ये कट गया, और कितना आ जाएगा, 50/-25 into 3, तो दिस कम्स एज -2/3, यानी -0.6 बार। M की वैल्यू, M का तो कोई यूनिट होता नहीं है। सो इमेज इज कैसी बताइए, मिनिएचर, डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टर। ये दिखाने से ज़्यादा अच्छा रहता है, अदरवाइज कंपेयर भी किया जा सकता है। ये बात हो गई। अब देखो नाउ, now a person is suffering from myopia
as well as hypermetropia. That means so that person is needed presbyopia का इफेक्ट बाइफोकल, that is ये एक तरीके का presbyopia ही हो गया। प्रेसबायोपिया अगर मायोपिक है तो फिर वो बाइफोकल चाहिए। प्रेसबायोपिया तो ओल्ड एज का हाइपरमेट्रोपिया है, लेकिन यदि वो मायोपिक भी है तब बाइफोकल चाहिए होगा। तो अब इस केस में ठीक है, दैट पर्सन नीड्स बाइफोकल लेंस, इट्स नियर पॉइंट is it is 50 meter 50 centimeter and far point is 1 meter. Suggest power of lens needed to rectify its vision. मॉर्निंग में 11:30 से 1:30 रहेगी क्लास। हाँ बोलो। कॉनकेव की -1 डायोप्टर और कॉन्वेक्स की 2 डायोप्टर। कॉनकेव -1 डी +2 डी। और कोई बता रहा है? अभी ये निकालना पड़ेगा, इसमें दिया नहीं है अभी भी। एक दो लोगों से और पूछ रहे हैं सर। हाँ, कॉनकेव की -2 डायोप्टर और कॉन्वेक्स की +1 डायोप्टर। और कृपया और कोई उत्कर्ष? कॉन्वेक्स की 2 डायोप्टर और कॉनकेव की 1 कॉनकेव की -1। चलो देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर अगर नियर पॉइंट उसका नियरेस्ट अप टू 50 सेंटीमीटर तक ही ऊपर सकता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ उसे तो बुक पढ़ानी होगी। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? उसका ये नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट के लिए दैट इज हाइपरमेट्रोपिया का केस है। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या लेना पड़ेगा? दैट
अ पर्सन नीड्स हाइपरमेट्रोपिया, जैसे बूढ़े लोग होते हैं तो उनको कौन सा लेंस चाहिए होता है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस इज नीडेड, ऐसा होता है कि नहीं। और उनको बुक पढ़ानी होती है, बुक कहाँ पर रखी है, देख लीजिए। तो अगर इस तरीके की आई होगी और उनको एक यहाँ पर लेंस लगाना पड़ेगा, वो पढ़ सकता है। कैसे पढ़ सकता है बताइए, 50 पे रखी हुई बुक को पढ़ सकता है। तो ये इसमें क्या होगा, दैट इसको ये कन्वर्ज कर देगा, ये तो दैट इट इज कन्वर्ज। तो 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई बुक है, ये 25 सेंटीमीटर है, और उसको वो कहाँ दे देगी बताओ, 50 पे दे देगी कि नहीं, कि भाई बुक वहीं है तुम वहीं पढ़ो। तो इस आइस को ये धोखा हो जाएगा कि हमें कहाँ से मिल रही है रेस, बताओ रेस कहाँ से मिल रही है, 50 से, लेकिन बुक कहाँ रखी है, 25 पे रखी है कि नहीं, और उसे वहां से मिलेगी। तो हमें u क्या लेना चाहिए, u दैट इज -25 सेंटीमीटर, और बोलो v कितना ले लें, उसका कितना है नियर पॉइंट, -50। यहाँ पे तो नहीं लिखेंगे ये सेंटीमीटर, तो लिखो v इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर, और बस लेंस का फार्मूला लगा दो। तो 1/f इज 1/v माइनस 1/u, तो 1/-50 minus 1/25, it is -50 plus 1/25, that comes as 50. तो -1 plus 2, that is 1/50. तो 1/f is 1/50. तो f कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर। तो f को अब कन्वर्ट करो मीटर में, so f is equals to plus 0.5 मीटर, तो पावर कितनी हो गई, 1/f in मीटर, so that comes as 1/+ 0.5 मीटर, so this is +2 डायोप्टर। वैसे लगा सही है। दूसरा देखें, that is far point। फार पॉइंट के लिए क्या है, मायोपिक पर्सन का वो ज्यादा दूर देख नहीं पाते, उनको आगे बैठाना पड़ता है, उनको सितारे दिखाने पड़ेंगे, तो बिकॉज दे कैन नॉट सी, तो ऐसा केस होगा ना। अब यहां तक इससे ज्यादा वो नहीं देख सकते, यहाँ की कोई चीज है तो दैट कैन बी सीन, तो वो ऐसा रे बन जाएगा। ये देखो बाहर की चीज आ रही है, ये ऐसे डाइवर्ज हुई, ये देखो स्टार आ रहे हैं इसकी आंखों के पास, और फिर यहाँ से वो उसे डाइवर्स कर देगा। तो उसको ये धोखा दिया जाएगा कि सितारे तो तुम्हारे 2 ही मीटर पर हैं, ये देखो, ये देखो, जबकि हम उसे सितारे दिखाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से डाइवर्स हो गया ना, तो उसे लगेगा वहीं पे तो है जो तुम्हारा पार पॉइंट है, देख लो। तो देखो ऐसे डाइवर्स हुआ कि नहीं। तो अब ये इसके लिए मुझे u क्या लेना चाहिए, u कहां से आ रही है रेस, नो 50 का तो केस ही नहीं है, वो तो तुम नियर पॉइंट ले रही हो, जबकि बात फार पॉइंट की हो रही है, जबकि बात मायोपिया की हो रही है। बोलो बोलो, ये बताइए। बोले सितारे दिखाने तो -∞, बुक पढ़ानी तो 25 लो। ऑब्जेक्ट तो वही है ना, जहाँ या तो बुक पढ़ाओगे या सितारे दिखाओगे, दोनों के अलावा और कुछ यू हो ही नहीं सकता, या -25 होगा या -∞। तो जो मायोपिया है उसको सितारे दिखाओ, उसको -∞ लो, जो हाइपरमेट्रोपिया है उसको किताब पढ़ाओ। तो अब v कितना हो गया, -100 ले लो, चलो 100 में ले लो, -1 ही लेना चाहिए, -1 मीटर ही मीटर में निकाल लो। 1/f is equals to 1/v minus 1/u, so it is 1/v -1 और 1/-infinity, तो -1/1 plus 1/infinity, so -1 1/f is equals to -1/1, तो f कितना हो गया, -1 मीटर, तो p कितना हो गया, 1/f, तो 1/-1, तो दैट कम्स एज -1 डायोप्टर। इसे -1 डायोप्टर है शिव शर्मा,
तो उसे कॉन्वेक्स लेंस चाहिए कि कॉनकेव लेंस? तुम अच्छा बता दो, तुम्हारा इंटरेस्टिंग आंसर हमेशा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पता चल गया कॉनकेव लेंस चाहिए। अब जरा देखो एक क्वेश्चन और करो, अर्चिता को पेन दे दें, ये लो। देखो एक इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन करो। एन इलेक्ट्रिक बल्ब is rated 60 watt to 20 volt. If voltage drops to 192 volt, calculate the power consumed and current drawn by one. बात कभी क्या जरूरत है, करो। In new case, हाँ पहले रेजिस्टेंस निकालो इन दोनों से, उस रेजिस्टेंस और वोल्टेज से पावर निकाल लो और उसी से करंट भी निकाल लो। ऐसा करो तो हो जाएगा। रेजिस्टेंस निकालो इन दोनों से, फिर पावर का फार्मूला लगा तो रेजिस्टेंस तो बदलता नहीं है।
सर करंट है 0.238 एम्पियर और रेजिस्टेंस नहीं पावर सर पावर है 45.696 वॉट और करंट है 0.238 एम्पियर। मैं लिख देता हूँ तुम्हारा, बताओ आंसर। करंट है 0.238 एम्पियर। यही गलत है। और बोलो पावर 45.696। एक और आंसर किसी से पूछना, फिर मैं कल करवा दूंगा। एक कोई ये बता दें, ये रेजिस्टेंस निकालो इससे, रेजिस्टेंस और इससे आर और वी से यूज करते हैं, पावर निकालो और आर और वी से तो करंट भी निकल जाएगा। तुमने रेजिस्टेंस कितना निकाला? 2420/3। अच्छा ऐसे कल करेंगे इस सवाल को। 0.2 हैं? 0.2 एक मिनट रुको, मुझे इनका आंसर सही लग रहा है क्योंकि आपको मुझे ठीक लगा। एक मिनट, लेकिन कल देखा जाएगा। कल 11:30 से 1:30 रहेगा क्वेश्चन आंसर का।